Hello everyone, this is Shivraj Gurjar, and today I will start statics. Statics, okay. So basically, statics and dynamics जो है this chapter. This is part of paper one in CSC as well as IFOS. Okay. Okay. So let us see what are the things we are required to discuss in this chapter. Okay. So this part is statics. This part is statics, equilibrium of a system of particles, work and potential energy, friction, common catenary, principle of virtual work, stability of equilibrium, equilibrium of forces in three dimension. Okay, so we'll discuss this part first. Okay, then later on we'll discuss this as well. Okay, so let us start with this common catenary. Okay. Acha, for this the standard book on which will rely is again Krishna Sri's. Okay, very limited chapter of this book. Okay, in fact, if as we have discussed fluid and mechanics. Okay, so if we compare these chapters, this topic with them, then these are far easy. In fact, okay. So okay, so let us start. Okay. Okay, so we'll start with common catenary. Okay, so in our syllabus, the mention is of only common catenary. Means within catenary, the thing which we need to study is this common catenary only. This is also known as uniform catenary. Okay, so let us see what is catenary. Okay, okay. For this, acha, this topic falls under motion of strings in two dimensional. Okay, so there can be two types of strings, flexible and inflexible strings, right? So basically the flexible strings are those strings which offer no resistance no resistance to bending. In fact, if we bend like this is a string, if we bend it like this, then there is no resistance to that. Okay, but inflexible strings are those which cannot be bent. In fact, okay. So when we will study this common catenary, in this we will study the flexible string. Flexible string जैसे जो चैन होती है ना, उसको we can approximate by this. मतलब they will act as flexible strings. ठीक है. So basically इस टाइप की जो स्ट्रिंग होगी ना, जैसे चैन है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो ये टेंजेंशियल जो टेंशन होगा यही देखा जाए तो दिस विल बी द ओनली फोर्स हियर. ठीक है. और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई, ये इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको लेट से ए है, तो ए को हम इतना स्मॉल मान रहे हैं कि ये जो ये जो बेसिकली चेन है उसको हम एज ए कर्व, लीनियर, नॉट लीनियर, एज ए कर्व इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. कर्व लाइन हो गया ऐसे. ठीक है. सो ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया. ठीक है. सो व्हाट इज कैटेनरी. कैटेनरी, if a flexible string or chain we can say is hanged between two non-vertical points. Okay, in vertical plane of course, under gravity, then the curve so traced by
the string or chain is known as catenary. So जैसे बेसिकली देखा जाए तो catenary is nothing but a curve like parabola. Catenary is a curve of its own sort. Okay, जैसे parabola वैसे catenary होती है, ठीक है. तो अच्छा, अब हमारे सिलेबस में catenary ना हो के ओनली कॉमन catenary है. ओके, सो व्हाट इज कॉमन catenary? Common catenary, if weight per unit length of a catenary या basically string chain is constant, then such catenary are known as common catenary, also known as uniform catenary. यूनिफॉर्म कैटेनरी, आई थिंक ये समझ में आता है कि वाई दे आर नोन एज यूनिफॉर्म, बिकॉज जो वेट पर यूनिट लेंथ है वो एक कांस्टेंट रहेगा, जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है, बेसिकली दिस बेसिकली एक्ट एज, जैसे कि अगर कोई वॉल्यूम एलिमेंट है उसमें जो डेंसिटी होती है वो दैट शोज यूनिफॉर्मिटी ऑफ दैट एलिमेंट. ऐसे ही यहाँ पे जो कर्व है सो ऑब्वियसली इसकी यूनिफॉर्मिटी अलोंग ए लेंथ डिफाइन होगी. सो पर यूनिट लेंथ जो इसका वेट होगा दैट विल गिव द मेजर ऑफ इट्स यूनिफॉर्मिटी. ठीक है, सो हमारे सिलेबस में यही है, दिस इज द ओनली इन आवर सिलेबस. सो बेसिकली जो पर यूनिट मास होगा, जो भी चेन या स्ट्रिंग हमें दी जाएगी वो कांस्टेंट होगा. ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक इन फैक्ट. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट. फर्स्ट इंट्रिंसिक इक्वेशन, intrinsic equation of common catenary. Okay, now onwards when I say catenary, that means common catenary only, because in our syllabus we have only common catenary. Okay, so these are 2 points, one will be here, one will be somewhere here. We have said that these 2 points should not be in the same vertical line. ठीक है, they will be in this vertical plane but they won't be in the same vertical line. ठीक है, तो ये से मान लो ये चेन है, ये इससे हैंग हो रखी है दोनों पॉइंट से, ये ग्रेविटी के अंदर है, यहाँ पे ऐसे ग्रेविटी वर्क कर रही होगी. मान लो इसका स्मॉल w इज द वेट पर यूनिट लेंथ, टोटल वेट मान लो इसका w है और टोटल लेंथ l है, सो देन दिस विल बी w by l. ओके, अब देखो, अब मान लो अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ खींचा है, लेट अस assume that this is x axis, this is y axis, let us say this is origin. okay, now मान लो ये this point is a, this point is b, let us say this point is c. ठीक है, so what we are trying to do here कि इसकी जो इक्वेशन होगी, इंट्रिंसिक इक्वेशन मीन्स इसका जो बेसिकली इसकी जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ एंड जो इसका टेंजेंट, जो इसकी लेट अस से ये कोई पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ खींचा है, टेक दिस इज थीटा. ठीक है, तो क्या होगा कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट वी कैन से टेंजेंट जो होती है उसकी स्लोप क्या होती है, dy by dx, and so this is dy by dx, that will be tangent of the angle which is made by this tangent with the positive x direction, that is tan theta. तो यहाँ पे dy by dx is nothing but tan theta. ठीक है, फर्दर अच्छा ये कर्व है हमारे पास, इस कर्व में कोई भी आर्क लेंथ मान लो, यहाँ पे स्मॉल ds ले लिया हमने, अगर यहाँ से ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए तो दिस इज dy एंड दिस इज dx. so ds स्क्वायर इज नथिंग बट dx का होल स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द वे वी कैलकुलेट आर्क लेंथ. ये तो हमने फ्लूइड में भी अच्छे से डिस्कस किया है, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डिस्कस किया था. ठीक है, सो 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में जो आर्क लेंथ होगी वो इससे वी कैन बेसिकली रियलाइज दैट बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से कि ds स्क्वायर, अगर dx बाहर ले लिया जाए तो
दिस इज 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। और वी कैन से दैट ds इज नथिंग बट dx अंडर द रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसा ही बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ दिस, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैलकुलेट आर्क लेंथ, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है। अब देखो नाउ, अब देखो मान लो इसमें ये जो पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे ऑफ कोर्स इस टाइप से कोई टेंशन वर्क कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे मान लो ये ओरिजेंटल तीन और है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसमें से हमने क्या किया, ए और पी, तो आर्क लेंथ ए पी हमने ले ली, ठीक है। मान लो ए पी जो है इसकी लेंथ है एस, ठीक है। सो आर्क लेंथ फ्रॉम नॉट ए पी, सी पी, ओके। सो दिस आर्क लेंथ सी पी इज एस, ठीक है। ओके, सो ये आर्क लेंथ हमने एस ले ली। अब देखो अगर इस आर्क लेंथ को ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे टेंशन टी वर्क कर रहा होगा, और ये जो लोएस्ट पॉइंट सी है इसमें से तीन और लेटर से ये टेंशन वर्क कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल है, ये लोवेस्ट पॉइंट है इसका, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी, ठीक है, कैटनरी और चैन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल लगेगा तीन और। अब देखो इसमें यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की, उसका हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है। तो अगर इस टेंशन को अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजोल्व किया जाए तो दिस इज टी कोस थीटा, दिस इज टी साइन थीटा, ठीक है। आई होप समझ में आता है। अब इसमें अगर फोर्स, अच्छा, फर्दर इट इज गिवन दैट लेट स्मॉल डब्ल्यू बी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग और कैटनरी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो एस लेंथ होगी, इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू इज नथिंग बट डी डब्ल्यू ओवर डी एस, ओके। और अगर डी डब्ल्यू की बात की जाए, सो दिस इज स्मॉल डब्ल्यू डी एस, बट क्योंकि दिस इज कांस्टेंट सो दिस कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रेशन डी एस दैट विल बी डब्ल्यू। पर यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ तक की जो लेंथ है, सी पी हमने एस बोली हुई है, सो दिस विल बी फ्रॉम जीरो से एस, सो दिस इज स्मॉल डब्ल्यू टू एस। तो इसका जो पूरा जो वेट होगा यहाँ से, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज पी, तो सी पी के बीच में जो वेट होगा वो डब्ल्यू एस होगा, और ऑब्वियसली इट विल बी एक्टिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो यहाँ से ये डब्ल्यू एस ऐसे फोर्स वर्क कर रहा होगा, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट अस कॉल इट जी, ओके। सो जी इज सेंटर ऑफ gravity of arc CP, okay। Now balancing forces for arc CP, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन फोर्स टी नोर इज इक्वल टू टी cos थीटा, राइट। These are the only two force, and in vertical direction basically this is T at WS is equals to T sin theta, ओके। आई होप ये समझ में आता है, सो दैट्स इट। अब देखो इसमें, अच्छा देखो ये जो टी नोर है, लेट टी नोर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू सी, ठीक है, वेयर डब्ल्यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड सी ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड टी नोर इज ऑफ कोर्स ए कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये जो यहाँ पे है लोवेस्ट पॉइंट पे जो भी टेंशन लग रहा होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, ठीक है। और एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि जो है बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा जो टेंशन लग रहा होगा वो टीन और ही होगा। देखो कहाँ पे भी अगर इसको ऐसा करेंगे, रिजोल्व करेंगे, कहीं कोई सा पॉइंट ले, मान लो क्यू ले लिया यहाँ पे, तो भी उसका जो भी होगा टी वन कोस थीटा दैट हैज टू बी बैलेंस बाय टी नोट, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा वो टी नोर ही होगा हमेशा, ठीक है। या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेंशन होगा, हॉरिजॉन्टल component of tension at each point of catenary is equals to T नोट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो T नोट है, लेट अस एज्यूम कि ये WC है, ठीक है, और वी कैन से कि दिस इज इन फैक्ट इक्वल्स टू द वेट ऑफ C लेंथ रोड। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ स्प्रिंग ऑफ लेंथ C,
ठीक है, क्योंकि ये जो स्मॉल w है दिस इज वेट पर यूनिट लेंथ, तो सी लेंथ का जो वेट होगा वो डब्ल्यू सी होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो अगर टी नोवर को डब्ल्यू सी लिख दिया जाए, सो टी डब्ल्यू सी टी कोस थीटा। अब देखो अगर इफ वी डिवाइड this by this, then this is ws divided by wc, t sin theta divided by t cos theta, or this is in fact s by c is equals to tan theta, or we can say that s is equals to c tan theta। okay, so I hope समझ में आता है। so यहाँ से what we can say that s equals to tan theta, c tan theta, s equals to c tan theta। this is known as intrinsic equation, intrinsic, okay, equation of catenary। catenary means common catenary, ठीक है। so this equation is important, so we this needs to be remembered, okay। अच्छा, अब देखो इसमें वेरियस रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो केटनरी की इक्वेशन इस टाइप से हैं। ये हमने पॉइंट ए बी, दिस इज पॉइंट सी, ओके। और जो है देखो, हाँ, और यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया हमने, और वो जो टेंजेंट ड्रॉ की, ये थीटा एज्यूम किया, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पी पे जो, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये एस है, तो एस इज इक्वल टू सी टेन थीटा, ओके। एंड टीन और वहाँ टीन और इज डब्ल्यू सी, ये हमने एज्यूम किया था, ठीक है, ओके। सो नाउ let us see other relationship between s and x, s and y, x and theta, y and theta, and so on। ये सब हमें देखने हैं, ठीक है। so देखो, ये हमने डिराइव किया कि s इज इक्वल टू सी टेन थीटा, ठीक है। और also we know that tan theta is dy over dx, because this is the slope of tangent at p, p is any general point x comma y, ठीक है। अच्छा, और फर्दर वी नो दैट डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, ये अभी हमने देखा आर्क लेंथ के लिए, ठीक है। तो ओके, यहाँ से टेन थीटा कैन बी रिटन एज एस बाई सी, सो दिस इज एस बाई सी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। और इफ वी डिफ्रेंशिएट दिस, तो डी एस ओवर डी एक्स सी, दैट विल बी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। बेसिकली व्हाट वी डिड, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अब देखो, अब ये ds और dx को क्या लिख सकते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया था। ds इज नथिंग बट dx रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और मॉडुलस ds और dx कैन बी रिटन एज दिस, ओके। सो दिस इज वन बाई सी रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ओके। आई होप ये समझ में आता है। नाउ let dy by dx is equals to some t, ठीक है। then d square by dx square is dt over dx, okay। so this will change into 1 by c root 1 plus t square is equals to dt over dx, or this can be written as c dt divided by root 1 plus t square dx, okay। इंटीग्रेशन किया जाए इसका, हमारे पास केटनरी इस टाइप से हैं। this is c, this is a, this is b, okay। and this is some point p जिसकी की ये आर्क लेंथ s है और ये पॉइंट x, y है, ओके। अब देखो ये 0 0 है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x 0 होगा, मींस इस लाइन पे x तो 0 होगा। सो व्हेन x इज 0, ठीक है, देन y, लेट अस से y इज y नॉट, ठीक है। और व्हेन x इज x, देन लेट अस से, अच्छा दिस इज t,
let us say t is t nor and when x is x then t is t, ठीक है. Okay, so now if we integrate this is nothing but sin h inverse t. This is integration of sin h inverse t. This is equals to x minus 0, right? Or this can be written as sin h inverse t is equals to x by c. अच्छा, integration dx over root 1 plus x square is nothing but sin hyperbolic inverse x plus c, or this can be written as log x plus root x square plus 1 plus c. दोनों एक ही बात है, ठीक है. तो ये हमने कर दिया, ठीक है. अब देखो, so from here we can say that t is sin hyperbolic x by c. दोनों तरफ से sin hyperbolic अप्लाई किया, but t is dy by over dx, ठीक है. अब देखो, ओके, अब देखो इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं. अच्छा, प्लस कांस्टेंट तो अच्छा वी हैव टेकन केयर ऑफ दैट. हाँ, दिस इज फ्रॉम टी टी नोट टू टी, तो माइनस साइन एच इनवर्स टी नोट, ये भी तो है. ओके, टी नोर इज व्हाट इज टी नोर? टी नोर इज dy by dx 8 where basically here we are applying this point. Okay, so when x is 0, this point let us say c comma y naught, this is the point, ठीक है. So at this point obviously dy by dx will be 0 because tangent जो होगी वो horizontal होगी यहाँ पे. Okay, so 8y equals to y naught, so this is 0. So sin h inverse 0 is of course 0 because if we put x 0 then log 1 is 0, so this part is 0, so we have this, ठीक है. So now dy is equals to sin hyperbolic x by c integration, ठीक है. So y is equals to cos hyperbolic x by c divided by 1 by c, that is c plus some d, ठीक है. d is constant of integration. अब देखो इसमें when x equals to 0, ठीक है, then let y equals to c, ठीक है. If we apply this condition, if y को we take c, then this is c cos a hyperbolic 0 is 1, cos hyperbolic theta is nothing but e की power theta plus e की power minus theta by 2. So if theta is 0, cos hyperbolic 0 क्या होगा? 1 plus 1 by 2, that is 1. So this is 1 plus d, so this makes d 0. Okay, so what happens, हमने क्या किया था कि y को हमने y नॉट ले रखा था, so उसको हमें लेना होगा c. Then this constant of integration will be 0. So y क्या हो गया? y is c cos hyperbolic x by c. ये इक्वेशन आ गई, पर इसमें जो y नोर है वो उसकी वैल्यू क्या है? c. कहने का मतलब है कि इस टाइप से जो कैटनरी बन रही है हमारे पास, ऐसे कैटनरी है, ये कोई a b एंड c, ये 3 पॉइंट है, ये x एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एनी जनरल पॉइंट p, वहाँ पे पॉइंट x y होगा, और यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एंगल थीटा यहाँ से बनाएगी, ठीक है. सो ये पॉइंट है, ये हमने क्या किया था 0 y नोर, पर इसको मानना पड़ेगा 0 c बिकॉज वी हैव टेकन y नोर एज c, सो दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन खत्म हो जाए. तो ठीक है, ये तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये c है. सो बस ये डायग्राम अभी हमें याद रखना है. दिस इज द कॉमन कैटनरी, ठीक है. तो कॉमन कैटनरी के लिए क्या होगा कि ये जो c है, अच्छा इस इनके लिए कुछ नेम, इनका कुछ नामकरण है वो कर दिया जाए, ठीक है. ये जो है देखो इसमें, अच्छा ये लेंथ जो है CP, ये तो हमने S बोली है, ठीक है. सो S इज आर्क लेंथ बिटवीन जो इसमें S है, दिस इज आर्क लेंथ बिटवीन C एंड P, ठीक है. अच्छा, जो भी चीज मेजर होगी वो यहाँ से हो रही है, ठीक है. मीन्स दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है. अच्छा, मीन्स रेफरेंस ओरिजिन है, बट जैसे यहाँ पे जो आर्क लेंथ है वो इस यहाँ से मेजर हो रही है, दिस इज द S, ऐसे हमने एज्यूम किया था. ओके, नाउ एंड थीटा इज एंगल ऑफ टेंजेंट मेड विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है. एंगल ऑफ टेंजेंट एट x, y, जो P पॉइंट है,
वो जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल बनाती है, दैट इज थीटा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे सी, दिस सी इज नोन एज पैरामीटर ऑफ केटनरी। ओके, so the distance of lowest point of catenary from origin is c। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है, और वेरी नॉर्मल थिंग्स। ठीक है, एंड दिस एक्स एक्सिस, या इसको लेट अस से एक्स डैश, दिस एक्स डैश एक्स इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ catenary। ओके, so x dash x axis is directrix of catenary। ओके, जैसे पैराबोला देखा जाए तो पैराबोला टाइप ही हो रही है। विल डिस्कस लेटली दैट व्हेन दिस x by c is very small, when this approaches towards 0, तो जो कैटनरी है दिस विल बी अप्रोक्सीमेटेड बाय ए पैराबोला। ठीक है, so basically this is in the shape of parabola, not exactly, we can approximate a catenary with the parabola when x by c is very small। ठीक है, अच्छा इसमें अब क्या रहेगा, अच्छा इसमें दो और कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट। this AB length is known as span of catenary। ठीक है, and this vertical length between this lowest point and the line AB is known as sag। ठीक है, तो आई होप समझ में आता है। मीन्स स्पान क्या हो जाएगा, स्पान ऑफ कैटनरी इज AB। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल जो पॉइंट है उसके जो हैंग्ड है उनके बीच की डिस्टेंस, एंड सैग ऑफ कैटनरी क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ लोवेस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी फ्रॉम लाइन AB। ओके, ऑब्वियसली वर्टिकल डिस्टेंस जो है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि व्हाट इज स्पैन ऑफ कैटनरी एंड सैग ऑफ कैटनरी। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है। सो इसमें बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ दैट इसकी जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट s इक्वल्स टू c tan थीटा, एंड अदर थिंग वी डिस्कस्ड इज y इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x by c। ठीक है, अच्छा ओके, व्हाट इफ वी वांट y इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। और व्हाट इफ वी वांट x इन टर्म ऑफ थीटा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओके सो देखो, अगर इसको थोड़ा इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सी 1/c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट टेन थीटा, दिस इज साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और वी कैन से दैट x बाई सी इज नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। और x इज नथिंग बट c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। बट वी नो दैट बट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स let us say z is nothing but log z plus रूट z स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सो इसको अगर यहाँ अप्लाई किया जाए सो x इज इक्वल टू c log z की जगह यहाँ टेन थीटा है, सो टेन थीटा प्लस रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज सेक स्क्वायर थीटा का रूट दैट इज सेक थीटा। सो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन। सो x इन टर्म्स ऑफ थीटा अगर करना तो ये आ जाएगा। सो लेट अस कॉल दिस 1, दिस 2, दिस 3। ऐसे हमें y भी चाहिए। सो y इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो एक तरीका तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, देखो हाँ यहाँ से देखो y क्या है, y इज c cos हाइपरबोलिक x बाई सी, ये हमने डिराइव किया। ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज
y इज इक्वल टू सी टाइम्स कोस हाइपरबोलिक क्या होता है e की पावर x बाई सी प्लस e की पावर माइनस x बाई सी बाई टू, और दिस c e की पावर x बाई सी, e की पावर x बाई सी, यहाँ से x बाई सी वी कैन राइट x बाई सी इज नथिंग बट log tan थीटा प्लस sec थीटा, okay, or we can say that e की पावर x by c is nothing but tan theta plus sec theta. ठीक है, so what we can do, we can directly write this e की पावर x by c is tan theta plus sec theta, and अगर इसको इनवर्स रिवर्स करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स बाई सी इज 1 डिवाइड बाई tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा माइनस या sec थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे भी sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, so this will be sec theta minus tan theta divided by sec square theta minus tan square theta, that is 1, okay, so e की पावर minus x by c is nothing but sec theta minus tan theta, ठीक है, divided by 2। आई होप ये समझ में आता है। सो बेसिकली इफ वी नो वन रिलेशनशिप, देखो थोड़ा ही हमें दिमाग लगाना पड़ा था सिर्फ जो y वाला एक्सप्रेशन था उसको डिराइव करने में, ये जो एक्सप्रेशन है बिकॉज इसमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा था। इफ वी नो दिस एंड दिस देन एनी अदर रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड इजीली, ठीक है, तो बस ये दो याद रहे तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू सी, टेन से टेन गया टू सेक थीटा, दैट इज टू सेक थीटा बाई टू, दिस इज वाई सी सेक थीटा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप आ गया, ये दिस इज इन इट्स थर्ड रिलेशनशिप नाउ, ठीक है, ये हो गया थर्ड, ठीक है। सो वी हैव y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, वी हैव x एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, we have intrinsic equation which is basically s equals to c tan theta, and we have this y equals to cos h hyperbolic x by c, this is fourth input, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है। सो अभी तो कुछ और कोई रिलेशनशिप, हाँ, व्हाट इफ वी आर आस्क्ड दैट व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन s c and y, okay, s c and y, okay, so we have s equals to c tan theta, we have y equals to c sec theta, ये भी मैंने ड्राइव किया। So if we I square y and minus this by s square, then this is c square sec square theta minus c square tan square theta। तो ये क्या हो गया, c square sec square minus tan square theta is 1। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास ये भी आ गया, c square plus s square, लेट अस कॉल दिस फिफ्थ, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी याद रखा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा, ये भी पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ ऐसा होता है। तो दिस इज सी, ये पॉइंट पी लिया था हमने, ये एस थी आर्क लेंथ, तो और ये मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स को वाई है, तो ऐसे याद रख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, ठीक है। सो आई समझ में आता है। सो दीज आर द बेसिक रिजल्ट ऑफ कॉमन केटनरी, ठीक है। डू दीज क्वेश्चंस, रिलेशनशिप बिटवीन टेंशन एंड ऑर्डिनेट, बेसिकली टी एज ए फंक्शन ऑफ वाई हमें चाहिए, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट, then arc length s as function of x, okay, and then this is CST 2012 question, we'll do that also, okay। So first question is tension as a function of coordinate y, ठीक है। so ये हमारे पास कैटनरी है, this is 0, c, let us say this is a, this is b and this is c, this is x-axis, this is origin, this length is c of course, this is some point p, let us say x, y, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे द एंगल विल बी साई, दिस एंगल इज साई, और थीटा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। सो ऑफ कोर्स डिवाइड बाय dx इज tan थीटा है, ठीक है। अच्छा हमें t एज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए, ठीक है। सो इफ वी टेक दिस आर्क लेंथ cp, arc length cp, then what are the forces on it? On p we have a tangential direction में tension, and here on c we have a horizontal tenor, okay, and this we have said this is theta, so this direction the tension will be t cos theta and this will be t sin theta, ठीक है। and here somewhere on the center of gravity, if this is c and this is p, this length is s,
then this ws weight will be acting downwards, ठीक है. अच्छा, T nor is equals to T cos theta by balancing the horizontal forces, but T nor we have assumed that WC, that W is this W is weight per unit length, okay, and C is of course this parameter of catenary, basically distance from this lowest this origin to the lowest point of this uh, trajectory, right? Now what we can do, okay, from here what we can say that T cos theta is WC, or we can say that T is WC sec theta, but we have discussed that Y is C sec theta, ठीक है. So W times Y, so this is T. So what we can say that tension is W times Y, or tension is proportional to the ordinate. So this is very simple. The second part is radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature is nothing but change of arc length with respect to theta. That is the radius of curvature. Theta means where theta is the angle which tangent at P makes with the positive x direction. Okay. This theta is not parameter here. Sometimes what will happen, that x will be given as, let us say, r cos theta, and some y is 2r sin theta. So this theta is not necessarily this theta. ठीक है. Here theta is that angle which this tangent make with the x axis. Okay. So I hope ये समझ में आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. So this is radius of curvature. Let us call this rho. So what will be rho then? We know that s is c tan theta. So rho will be ds over d theta, that is d c tan theta over dt d theta, or this is c sec square theta. So basically radius of convergence, radius of curvature can be written as c sec square theta. Okay. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किया, ठीक. सो आई होप ये समझ में आता है. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्क लेंथ एज फंक्शन ऑफ एक्स. ओके. अच्छा, ये हमने डिस्कस किया कि c इक्वल्स s, द आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू c tan थीटा, और s by c is tan theta. Again tan theta is divided by dx, and further we know that y is c cos hyperbolic x by c. ये सब मैंने derive किया. So from this what we can say that s by c, if we differentiate this with respect to x, so c times 1 by c sin hyperbolic x by c, or this is s equals to c sin hyperbolic x by c. So this is s in terms of x. Okay. So this is easy. Okay. Now what is the next question? Okay. So this has been asked in CSC 2012. So let us try this. This is also easy. Kettner से tough कैसे हो सकता है? Kettner is very easy topic. Okay. So let us do it now. Okay. The ends of uniform chain slides along a fixed rough horizontal road. Let us say this is a rough horizontal road, and the ends of a chain slides over it. ठीक है. If span of chain is theta, this span is theta and length is L, then okay. So basically ऐसे ये chain है, ऐसे hang हो रखी है. This is A and this is B. This is a rough road. Rough road means there is a friction. Okay, so this is our catenary. This is x-axis. This is the lowest point. ठीक है. This is lowest point C. Of course 0, C. ठीक है. Now if we see here, so there here the tangent, the tension will be like this along the tangent. Tension will be along the tangent. ठीक है. So this tension will be of course balanced by a force applying here. There must be some force in just opposite direction of T. Let us call this F. Okay. So this force should balance this T. Then only for equilibrium. For equilibrium, F vector should be T vector. Yeah, F vector plus T vector should be 0 if we talk in the terms of vector. ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पे because this is road and this is in contact with this chain, so यहाँ पे there will be a normal force, right? Let us call that reaction force. And अच्छा okay.
basically what is happening ki if this is hanged like this, okay, then they will try to come, these two ends will try to come together, so there will be a friction force here. Let us call it small f. ठीक है. Okay, so this f, अच्छा, f is resultant of r and small f. Okay, so let us say this is angle theta, or if we draw a tangent at the end of this at the b, then this, if we assume this is theta, then this has to be theta. So basically here the theta is the angle tangent makes with the x-axis, and wo theta will be the direction of this resultant force. Okay, so from here if we see that, then tan theta will be r divided by f, ऐसा बोल सकते हैं. If there are two forces, ठीक है, and resultant is of these two forces in this direction and this theta, then of course the tan theta will be given by y component of the force divided by x component of the force. Okay, but because here we are talking about the maximum theta, this is theta. Okay, let us call this lambda. Okay, so this is lambda, this is span is lambda. What is span? Span is the distance between a and b. So this will be maximum when this f will be maximum. Okay, so we can write lambda is maximum when f is maximum. Okay, for f, maximum value of f will be when the friction will be static friction, right? That will be mu times normal reaction that we have taken r. ठीक है, so this will be the maximum value of this f, which is f max. ठीक है, so what we can say that then this theta will be, tan theta will be r divided by f, that is mu r, that is 1 by mu, because this theta is the angle when f is maximum or lambda is maximum, because हमें वही चाहिए. ठीक है, आई होप ये क्लियर है. तो बस सिंपल है. अब तो अब क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी नीड एक्चुअली, हमें चाहिए स्पान. इससे दिस इज x, ऑफ कोर्स दिस विल बी x. वी नो दैट x इज इक्वल टू c टाइम्स log tan थीटा प्लस sec थीटा. ये हमने डिराइव किया. ठीक है, सो x इज दिस, बट tan theta is 1 by mu. Okay, let us call this, but from equation 1 tan theta is 1 by mu. Okay, so x equals to c log tan theta, that is 1 by mu, plus root of sec theta is 1 plus tan square theta, that is 1 plus 1 by mu ka whole square, that is mu square plus 1 divided by mu. This will be x. Okay, so x means this is basically half of AB, or we can say this is half of AB, right? If this total distance is AB, then this distance is half of AB. So what will be the maximum span? So maximum span AB is twice of this 2c log 1 by mu plus 1 by mu root mu square plus 1. ठीक है, and length, okay, length, total length is L. Okay, total length of rod of this chain is L, and we know that S is equals to c tan theta. Okay, और यहाँ पे जो S मेजर होती है, this arc length, this is from this point C, tan theta is 1 by mu, right? तो यहाँ से we can say that S is equals to C by 2 mu. Okay, so let us call this equation 2, this equation 3. So AB max divided by L means twice of S, right? So this will be 2c log 1 by mu plus root mu square plus 1 by mu divided by c by mu. Okay, so this is c by mu, और c से c cancel हो गया, so this is 2 mu log
Okay, this is s, then this twice, so we have to multiply this by 2. No, s is simply this, so this is basically c by mu, so 2s will be 2c by mu, right? So this is 2c by mu, so 2c से 2c कैंसिल हो गया, ओनली म्यू रह गया यहाँ पे, c 1 by mu प्लस रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 by mu. सो दिस इज द आंसर, यही हमें प्रूव करना था. सो आई थिंक ये समझ में आता है, ठीक है. या दिस वाज द रिजल्ट वी वांटेड. अच्छा, इसमें देखो ये है कि इसमें ये शो कर सकते हैं इन क्वेश्चन, इफ आई थिंक दिस वाज 15 मार्क्स, ठीक है. इफ इट वाज 10 मार्कर देन वी कैन डायरेक्टली यूज दिस formulas. If it was 15 marker, then also we can directly use the intrinsic equation. We can say that intrinsic equation of quaternary is c tan theta, ठीक है. First thing. Second, for x we have to derive this. For x, for that we have to derive that x will be this. Okay, for that what we need y as c cos hyperbolic x by c. This we derive from द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ, ठीक है. ये मैंने जैसे डिस्कस किया वैसे ड्राइव करना होगा, ठीक. सो आई होप ये समझ में आता है, ठीक. लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन. A chain of length 2L is hanged between two horizontal points. The maximum tension it can bear is same as weight of lambda length of chain. Show that the greatest span is this. Okay. So simple है. इसमें क्या है कि this is quaternary. Okay. And this is hanged between these two horizontal points. Let us say this is A and this is B, and let us say this is the lowest point C, and this is origin, this is x-axis, and this is y-axis. Okay, we know that ये हमने देखा था अभी, tension is proportional to the ordinate. Okay, A is equals to Wy. Okay, so tension will be maximum when y is maximum, right? Because W is constant, so y will be maximum at this point. कोई से एक साइड ले लें. Okay, so basically y, let us call this y max is when y is at B, ठीक है. So I hope यहाँ तक क्लियर है. हमें चाहिए स्पान, the maximum. Okay, अच्छा, it is given that the maximum tension it can bear is same as weight of lambda length of chain. Okay, so per unit length मीन्स यूनिट लेंथ का जो वेट है वो W है, तो लेमडा का कितना होगा, W लेमडा हो जाएगा लेमडा लेंथ का. बट दिस इज इक्वल टू वाई W एट YB. Okay, so from this we can say that YB is nothing but lambda. So this length, if we talk about the coordinate of here, so x comma जो y coordinate होगा that will be lambda. Let us say x component is xb, and so then our aim is to find this xb. Okay, twice of xb will be so span of this quaternary will be twice of xb, right? So what is xb? So that can be, okay, one way is we know that y is c cos hyperbolic x by c. Okay, we know that, or we derived this, ठीक है. So what we can say that y by c cos hyperbolic inverse is equals to x by c, और ऐसा बोल सकते हैं. So from this what we can say that x is equals to c times cos hyperbolic inverse y by c. Y means y at b, because we need x at b, ठीक है. So y at b is lambda, so this is lambda by c. Y at b is lambda, right? From the first condition we got this, right? So now, acha, further we know that cos hyperbolic inverse theta is nothing but log theta plus root theta square minus 1. यही होता है इसका, ठीक है. Okay, if we put cos hyperbolic theta plus sin hyperbolic theta, it is yeah. So this is the formula for cos h inverse theta. ठीक है. So this can be written c times log the theta will be replaced by lambda by c. So this is lambda by c plus lambda square by c square minus 1. So this is xb. Now our aim is to find out this c, ठीक है. अच्छा, हमने अभी यूज नहीं किया लेंथ का. लेंथ 2L है इसकी, लेंथ इज 2L.
इसका मतलब क्या हुआ कि this length is L and this is also L, then it will make it 2L because the curve is symmetric about y axis. Y equals to cos hyperbolic xyc. This is the equation of this curve. If we replace x by minus x, then also it won't change. So obviously it's an even function. Even function is symmetric about y axis. Okay. So okay. So we have length. Okay. So basically we know that ये हमने डिस्कस किया अभी कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर. ओके. तो अगर वाई बी की बात करें तो एस जो बी तक जो भी लेंथ होगी वो एस बी स्क्वायर हमें मिलेगी. सो एस बी स्क्वायर इज वाई बी स्क्वायर इज लेमडा स्क्वायर. सो दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. ओके. प्लस सी स्क्वायर. बट दिस एस बी इज एल. Length till b is L because this is SB from 0 to this is L and this is also L, so we can put SB as L. So this is C square is equals to lambda square minus SB square, that is L square. So from this we can say that C is lambda square minus L square का root. This cannot be negative. ठीक है. तो बस तो हमारे पास जो एक्स बी है वो क्या आएगा, रूट लेमडा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लॉग लेमडा बाई सी. So देखो this is lambda plus root lambda square minus c square, that is lambda square minus c square divided by c, that is root lambda square minus l square. So I hope ये समझ में आता है. So this is root of lambda square minus l square log. So this is lambda plus l, right, and this is root of lambda square minus l square, that can be written as lambda minus l, lambda plus l का रूट. चलो लिख देते हैं. ठीक है. हमें चाहिए स्पान, तो स्पान क्या होगी. सो मैक्सिमम स्पान इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स बी. सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लॉग रूट ऑफ लेमडा प्लस एल डिवाइड बाय लेमडा माइनस एल. ठीक है. और दिस हाफ कैन बी टेकन आउट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. सो ये हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो वी हैव रूट लेमडा स्क्वायर एल स्क्वायर log lambda plus L divided by lambda minus L. This is the maximum span. यही हमें प्रूव करना था. hence proof. Okay. So I hope ये समझ में आता है. Okay. Let us do next question. Okay. So let us do this question. Okay. If A and B are angled at the extremities of a uniform chain which it make with the horizontal. No. If A and B are the angle, the tangent at the extremities of a uniform chain makes with horizontal, then show that y2 minus y1 is this expression, where y1 and y2 are ordinates on the ends of the chain, and of course these both ends lie on the same side. Okay. And L is length of the chain. Okay. So देखो what we are given this time. It is given that the chain is lying only in one side. ठीक है. So let us call this is B and this is A. Okay. And if we put a tangent here, then the angle is B, right, extremities. And if we put a tangent here, इस टाइप कुछ टेंजेंट बनेगी. सो दिस एंगल इज ए. ओके. so we are asked to find y2 minus y1 and this length is L. So we know that in intrinsic equation of catenary ये क्या होती है. This is S equals to C tan theta.
एंड दिस लेंथ इज गिवन एज एल। ओके, तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ओके, 8 पॉइंट बी, ओके, सो लेट अस एज्यूम दैट जो इस टाइप से ये लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे सी होगा। लेट अस से कि ये जो आर्क लेंथ है, दिस इज सम के, ठीक है। सो 8 पॉइंट बी अगर बात करें तो यहाँ पे जो आर्क ये लेंथ हो जाएगी, मीन्स जो एस एस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, की के प्लस एल। ऑफ कोर्स बिकॉज हम यहाँ से एस को मेजर करते हैं जीरो से, जीरो मीन्स 0,80 से। सो दिस वी हैव एज्यूम्ड के एंड दिस लेंथ इज एल एनीवे। हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, ये हमने ऐसे एक्सटेंशन किया है, ठीक है। ओके, एंड वाई, वाई भी तो हमें चाहिए, और क्या है हमें पता है इसमें, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो क्या है, बी है। सो अगर वाई बी की बात की जाए, इसको वाई टू बोला है वाई बी को, दैट इज वाई टू। तो ये क्या हो जाएगा, सी सेक थीटा, और भी कैसे सी सेक थीटा, यहाँ पे बी है, ठीक है। सो दिस इज वाई टू। सिमिलरली वाई वन क्या होगा, 8 पॉइंट ए, वाई वन क्या हो जाएगा, सी टाइम्स सेक ए, ऐसा बोल सकते हैं। सो बेसिकली वाई टू माइनस वाई वन इज नथिंग बट सी सेक बी माइनस सी सेक ए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मकसद है इस सी को एलिमिनेट करना है यहाँ से, बिकॉज सी तो ये है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। हमें एल दिया हुआ है, वी नो एल, राइट, व्हाट एल्स वी नो। ओके, या फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, अच्छा, ओके, 8a अगर इक्वेशन लिखी जाए तो एस ए विल बी सी टाइम्स 10a, ऐसा बोल सकते हैं इसको। ऐसे एस बी विल बी सी टाइम्स 10b, ठीक है। अब इफ वी माइनस एस बी माइनस एस से किया जाए तो ऑफ कोर्स एस बी में से अगर एस से माइनस करेंगे तो सिर्फ ये लेंथ एल ही बचेगी। सो दिस विल बी एल, दैट इज सी 10b माइनस 10a। ओके, सो फ्रॉम हियर वी गोट दिस सी इज एल डिवाइड बाय 10b minus 10a। I hope ये समझ में आता है। So now what will be y2 minus y1? That will be c times, what is c? L divided by 10b minus 10a multiply by sec b minus sec a। अब इसको सोल्व किया जा सकता है। So this will be L times, देखो cos a cos b, तो this is cos a minus cos b divided by sin b cos a minus दिस इज साइन बी माइनस कोस ए। ये हो गया हमारे पास y2 माइनस वाई वन। बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, हमें प्रूव क्या करना है, यस इसी टाइप का कुछ है, ठीक है। सो y2 माइनस वाई वन इज एल टाइम्स, अब देखो दिस इज कोस ए माइनस कोस बी डिवाइड बाय दिस इज साइन, नो 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 नो, दिस इज साइन बी कोस ए, ठीक है, दैट इन दिस इज साइन ए एंड कोस बी, राइट। सो दिस इज साइन बी माइनस ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन बी माइनस ए। और देखो इसको, इसमें ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, cos a minus cos b can be written as twice sin b minus a by 2 into sin a plus b by 2, ठीक है। ये सी डी फॉर्मूला जो हुआ करते थे, ठीक है, किसी जमाने में, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ अप्लाई किया जाए तो दिस विल बी 2 साइन b माइनस a by 2 इंटू साइन a प्लस b by 2। और देखो इसमें इसमें साइन का हाफ फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा इज नथिंग बट 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर ये अप्लाई किया जाए तो ट्वाइस ऑफ साइन b माइनस a बाई 2 इंटू कोस b माइनस a बाई 2, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ये पार्ट एंड ये पार्ट तो हो गया कैंसर,
ठीक है। सो हमारे पास जो y2 माइनस y1 आया वो क्या है, दिस इज l टाइम्स साइन डिवाइड बाई कोस, साइन a/2 प्लस b/2 डिवाइड बाई कोस b/2 माइनस a/2। सो दिस इज द आंसर वी नीड। आई होप ये समझ में आता है। इसमें a/2 को पहले ले लो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, या दिस वाज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आता है। इसमें बस बेसिक है। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या है, सी एस इक्वल्स टू सी टेन थीटा, देन वी नो वाई इज सी टेन सी सेक थीटा। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी हमने डिराइव की थी y इक्वल्स टू सी कोस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और केटेनरी। ये दोनों अगर पता है तो एनी अदर इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज इजीली। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, एक्स इज सी log टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एंड बस यही सब है। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट दैट t इज प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, बस basically if we this and this we know, then others can be derived from these two। ठीक है।